Okay, so I think we have sufficient attendance. I'll just start with a short presentation, a quick introduction of Pasha. I hope I'm audible. Yes, you are. Okay, thanks. I'll share the screen and we can start. So this episode of the Game On webinar is hosted by the Animation and Games Committee, Pasha. So in this committee, we have Fasi Mehta as chair. We have Aliya Ahsan, Haris and Hassan, Abdul Salam, Wolfam and Ozair. And then we have the secretariat, where there's manager skills development, Alim Abbas, myself, Safasni as associate, and Ramin as the intern. So a quick overview of what we have achieved over the past few months. We have the Game Developers Conference. We have been partnering with the Ignite for the launch of Sega and VPS. We recently launched the Animation and Games Report as well, powered by Mindstorm and Labs. Then it is also the first ever comprehensive Pakistan ANG directory. And we do organize roundtables at IDCN and IDC Awards. So these are just some of the things that we have been doing. And without much wait, we can start the episode. Fasi, if you can please take over. Thank you, Safa. Assalamu alaikum, everybody. I hope you all can hear me fine. So, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप सब ने join किया. I'll keep it bilingual. I hope it's okay. English हो या उर्दू हो, मज़ा तभी आता है. So, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं quickly brief दे दूं कि ये है क्या. हमने एक सीरीज स्टार्ट की गेम ऑन पाकिस्तान के. भाई पाकिस्तान का वक्त है, ये पाकिस्तान का वक्त आ चुका है. गेम ऑन है boss, and game on means that not just for games industry but also for animation overall in general. This is, we believe, the time for Pakistan to capture lot of market opportunities that are out there. And to address those, we thought, why don't we bring industry leaders and start talking about it. So we did our first webinar during Ramadan. It was a great hit. We had a huge number of people joining in. And although हमने रात को बड़ा लेट किया था, but लेकिन काफी इंटरेक्टिव डिस्कशन रही. वो था गेम्स के ऊपर, मोनेटाइजेशन के ऊपर, अच्छी गुफ्तगू रही. आज की जो सीरीज है वो एनिमेशन के ऊपर है, और इसमें मेरे साथ जो गेस्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूं. ऑल्दो आप सब इंडस्ट्री से हैं तो आप जानते हैं. तो वी हैव आसिफ भाई विद अस, आसिफ इकबाल, जिनको इस इंडस्ट्री का गॉडफादर भी कहते हैं, फाउंडिंग फादर भी कहते हैं, जिन्होंने बुनियाद रखी एनिमेशन स्टूडियो, आज जो आइस एनिमेशन के नाम से जाना जाता है. और बहुत सारा काम जो दुनिया से बाहर से आया और करना शुरू हुआ, उस पर बात करेंगे आसिफ भाई से. और उनके जो एक बड़ा enriching experience है, we'll seek some of his pearls of wisdom on that. Then we have Hassan bin Rizwan, good friend, a great entrepreneur, a very resilient entrepreneur. He runs 2 studios, एक Moonshot Animation के नाम से, एक सबक एडटेक स्टार्टअप है इनका, और इनकी भी टीम कराची में है. रिसेंटली हसन ने एक वेंचर आउट किया कि बाहर जाके बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में बहुत सारा काम ला सकते हैं अगर हम मिल के काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. तो वी डिसाइडेड, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट इट इन दिस वेबिनार, वेयर वी डिस्कस व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड. So format ये है, open होगा. I'll be asking some questions to Hassan and Asif भाई, they'll answer. आप लोगों के कोई सवालात हैं तो I would request के put them in the chat and keep your peace till then. Towards the end of the session हम उस पे आएंगे ताकि आप लोग भी अपने सवाल पूछें. So starting from you, Hassan, क्योंकि मैंने आपका जिक्र किया, आपने recently
कॉन्फ्रेंसेज जो अटेंड की, मलेशिया जाते रहे, और भी जगहों पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जाना चाहिए, चाहे वो सिग्रेफ है या एनएससी है। क्यों आप समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं? क्यों यू थिंक, व्हाई यू सो पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाइल पीपल बिलीव कि बड़ा मुश्किल है, बड़े मसाइल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं? ऑब्वियसली टैलेंट का सबसे बड़ा चैलेंज का सामना होगा, कॉस्ट कंपैरेटिव नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हम हैं, कुछ कहते हैं इतना काम नहीं आ रहा है। तो जरा मुझे थोड़ी सा इस पर रोशनी डालें कि वेयर आर दोस अपॉर्चुनिटीज, वेरी ब्रीफली, आज फिर हम डिटेल पे भी जाएंगे, और क्यों आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? Thank you so much, Fasi. Can you hear me fine? या वी कैन। Yes. Okay. So, आप सही बात कह रहे हैं कि why I feel bullish about opportunities for Pakistani studios, both gaming and animation studios, to reach outside and get a bigger market share. उसकी रीजन है, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। कहानी है, एक एंटरप्रेन्योर था, उसके पास सेल्स का एक बंदा था। उसने उसे कहा कि यार हम अ, जूते बनाते हैं, तो तुम ऐसा करो कि अफ्रीका जाओ, वहां देखो वहां कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो उसे दो बंदों को भेजा अपने पास से। एक बंदा गया अफ्रीका, वहां देखा कि वहां सब नंगे पैर हैं, तो उसने कहा यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनते, यहाँ तो कोई मार्केट ही नहीं है। दूसरे बंदे ने भी देखा अफ्रीकन को कि यार ये तो सारे नंगे पैर हैं, मगर उसने कहा यार ये तो हर बंदे को जूता पहनाने की अपॉर्चुनिटी है। दोनों केम बैक विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो मेरा पर्सपेक्टिव उस बंदे वाला है जिसने ये देखा कि यार जूते कोई भी नहीं पहन रहा और हम सबको जूते पहना सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी इवेंट्स किए पिछले 4 से 5 सालों में, ऑल टुगेदर 8 से 10 इंटरनेशनल इवेंट्स किए, मुझे वहां पे कोई और पाकिस्तानी नहीं मिला। और मुझे वहां पे सबसे बड़ी तादाद जो एक मुल्क की होती है, वो हमेशा इंडियंस की होती है। एंड द वे दे इंटरैक्ट, द वे दे वर्क द रूम, द वे दे वर्क स्टूडियोज एंड अदर पार्टनर्स, इट इज रिमार्केबल। वो दोपहर में, शाम में, रात में, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, आप दिन के किसी भी वक्त देखें, आप उनके 4 से 5 लोगों को हडल करता देखेंगे, एंड दे आर ऑलवेज शेयरिंग नोट्स, दे आर ऑलवेज शेयरिंग नोट्स, एंड दे ऑलवेज रीचिंग आउट एंड सेइंग कि यार उस बंदे से मैं मिला था, उससे मिलने का फायदा नहीं है, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, या तो मुझसे जाके मिलो, उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है। और वहाँ पे ऑन एवरेज एक स्टूडियो 300-400 बंदों को लेके बैठा हुआ है। 300 से 400 लोगों का एनिमेशन स्टूडियो है, एंड दे building their own IPs. They're working with the government. They're working with studios in Europe. They have contracted foreign agents, sales agents on retainership. तो जब मैं वो काफ़ी सारी चीज़ें देखी, तो आई रियलाइज कि बहुत सारी मार्केट्स में पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बीन एबल टू कैप्चर बिजनेस अगेंस्ट इंडियन कंपनीज, और एटलीस्ट बीन एबल टू गेट टू सम बिजनेस लेवल। राइट नाउ एटलीस्ट एनिमेशन स्टूडियोज, क्योंकि वो सर्विसेज ओरिएंटेड है, वो इतना ज़्यादा उनका फुटप्रिंट नहीं है। तो आई फील कि जहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, वहाँ पे अगर 10% भी हमारी मार्केट प्रेजेंस नजर आना शुरू हो जाए, so there'll be almost 10x of what we are doing if we are capturing maybe 1%. तो मेरी बुलिश अप्रोच आती है फ्रॉम द फैक्ट कि हम कंप्लीटली एब्सेंट हैं इंटरनेशनल ट्रेड शोज में, इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ। और वहाँ पे अगर हम अपनी प्रेजेंस लेके जाएंगे, और एज अ सिंगल स्टूडियो ले जाना मुश्किल है, 10, 15, 20 लोगों को तो कोई घास नहीं डालता, 100 लोगों से कम के स्टूडियो को भी कोई घास नहीं डालता। आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप किसी क्रिएटर के सामने, किसी प्रोड्यूसर के सामने ये बोलें कि यार मैं 52 एपिसोड्स का 7 मिनट का शो, यानी 364 मिनट जो है ना, वो 14 महीनों में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये अच्छा, कैसे डेवलप होगा? अच्छा, गुड पॉइंट हसन। यू सेड के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे, जस्ट फॉर दोज हु आर जॉइनिंग अस नाउ, कि 4-5 साल से आप जा रहे हैं, you've seen no presence of Pakistanis other than a few that you saw on yourself. Now this brings me to you, Asif bhai. What do you think are the conditions in the country? Why we are not there where we should be? And why in particular? Because जो है तो वो है, और प्रॉब्लम्स काफी हैं, लेकिन आपके ख्याल में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है बड़ी मार्केट के अंदर? कैसे पाकिस्तान का गेम ऑन होगा? ओके, मैं आपको थैंक यू फसी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया मेरा, यू ऑलवेज डू, थैंक यू। अच्छा देखें, पहले तो इंटरनेशनल मार्केट पे, एज वी ऑल नो कि यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट, अबाउट 60-65% ऑफ ग्लोबल एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो यूएस है। तो मेक और ब्रेक अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का चाहें, मीडिया में या एनिमेशन में, तो दैट इज द यूएस मार्केट।
यूएस मार्केट में इस वक्त सिंस 2022, 23 और अभी 24 एक बहुत बड़ा इस वक्त वो एक फेज से गुजर रहे हैं जहां पे स्टूडियोज या तो कंसोलिडेट हो रहे हैं या आउटसोर्सिंग पे जा रहे हैं। आई मीन डिज्नी कभी यूएस से बर्बैंक के स्टूडियो से बाहर डिज्नी कभी नहीं गया था। नाउ दे आर वैंकूवर। ब्लू स्काई बंद हो चुका, डिज्नी ने टेक ओवर कर लिया, उसके तमाम एसेट्स कर लिए और उसके बाद दूसरी भी जितनी मेजर कोई मेजर स्टूडियो यू पिक अप दे आर ऑल गोइंग फॉर आउटसोर्सिंग मॉडल। करंटली इट सूट्स देम टू गो टू कनाडा, लेकिन फिर वो इंडिया भी जाते हैं। मोस्टली फॉर द फीचर फिल्म दे गो टू वैंकूवर या यू नो टू यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, बट फॉर द शोज, टीवी shows, they're looking outside of the North American area because of the cost. Cost जो है doing productions in US is so high कि some corporations जो हैं उनकी profitability हर्ट हो रही है, बेसिकली हर्ट हो रही है। नेटफ्लिक्स की एग्जांपल है कि नेटफ्लिक्स ने स्टूडियो बनाया, 6 फिल्में साल की उन्होंने करनी थी एनिमेटेड, एंड दे कैंसल्ड इट एंड दे रिड्यूस्ड इट टू 2 फिल्म्स अ ईयर। तो ये सिचुएशन इस वजह से नहीं है कि कंटेंट की डिमांड नहीं, ये सिचुएशन इस वजह से कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद इन नॉर्थ अमेरिका इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अब इसमें इंडिया एक मेजर प्लेयर है ऑफ कोर्स, और हमारे में और इंडिया में अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे इन अ सेंस। जैसे अभी हसान ने जो बात की बिल्कुल सही है कि एक साइजेबल स्टूडियोज आपके होने चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई एक भी स्टूडियो ऐसा नहीं है जो इस साइज पे हो कि एक वो एपिसोडिक समझ लें कि कोई 10 मिनट्स इनटू 26 एपिसोड साल में वो निकाल के दे सके। तो ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ ग्राउंड के ऊपर कोई प्रॉपर एजुकेशन एनिमेशन में नहीं। वी डोंट हैव, शायद अब कुछ जगहों पे शुरू हो रहा है, बट दैट गोना टेक अनदर फ्यू इयर्स के कोई रिसोर्स वहां से बाहर आए। और अब तक जो चल रहा था वो यही था कि स्टूडियो खुद ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो वही रिसोर्सेज घूमते रहते हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉपरली कोई ट्रेनिंग का गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली आई थिंक इट शुड बी ऑल डन बाय द गवर्नमेंट, एटलीस्ट पार्टली डन बाय द गवर्नमेंट, ताकि स्टूडियोज को जैसे आईटी इंडस्ट्री में होता है कि मोस्टली दे गेट द रिसोर्सेज जस्ट आउट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड दे कैन हायर देम। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमें खुद ट्रेन करना है, खुद हायर करना है। दैट इज अ बिग टास्क इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। So coming back to the opportunities, I think आउटसोर्सिंग की इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पहले नहीं थी, बिकॉज यूएस के स्टूडियोज बंद हो रहे हैं। उनके यहाँ भी एक मशरूम ग्रोथ हो रही है इस वक्त इंडी स्टूडियो, लेकिन अगेन वो भी उनकी भी कॉस्ट वही है जो कि बड़े स्टूडियोज की होगी। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इन कमिंग ईयर्स कि हम अगर उस स्केल पे जाएं। और सेकंड प्रॉब्लम जैसे हसन ने कहा इज जस्ट नॉट द ट्रेड शोज, हमें फुल टाइम प्रेजेंस चाहिए इन द यूएस मार्केट। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि जिसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वेदर कोई सेल्स एजेंट प्रेजेंट कर रहा हो या कोई कंसल्टेंट प्रेजेंट कर रहा हो या कोई भी, मतलब somebody डूइंग। बिकॉज होता ये है कि आप जाते हैं ट्रेड शोज में, वापस आते हैं, फिर वो एक बबल बैठ जाता है, फिर वो अगर किसी के पास कोई होता है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मतलब बनती, बट इट्स नॉट एज गुड एज कि हमारी अपनी प्रेजेंटेशन हो वहाँ पे। तो ये हमारे, अगर हम अपनी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रखें, at the same time we scale the studios over here, then yes we have an opportunity, because हमारा डॉलर इंडिया से I guess what 1/3 है, तो वो हमें प्राइस एडवांटेज तो देता है इंडिया के ऊपर। थैंक यू आसिफ भाई। सो पीपल हु हैव जॉइंड, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई कि पहली बात हसन ने कहा वी आर नॉट प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल फेयर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो पाकिस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री की सही अक्कासी उस फोरम पे नहीं हो रही। आसिफ भाई ने बताया कि जी इंटरनेशनली चूंकि अमेरिका में इस वक्त स्टूडियोज मर्ज हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज सो हाई, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कैश दिस बिजनेस।
अच्छा हो कि वहां पे हमारी कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेशन हो, इस इंडस्ट्री की एसोसिएशन की कोई अगर रिप्रेजेंटेशन हो जो जाके बता सके कि ये हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। जो लफ्ज है ना कलेक्टिव स्ट्रेंथ, हसान, अ, मेरी और आपकी इस पे कई कई बार डिस्कशन हो चुकी है, और हमारे एक दोस्त अली हसान, शायद इस वक्त नहीं है इधर ऑनलाइन या नहीं, उनके साथ भी, और वो हो रही है को प्रोडक्शन पे, कि अब जो वक्त है वो है को प्रोडक्शन का, कि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिल रही है तो उसको डिनाई ना करें, अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ जाएं, 3-4 स्टूडियोज मिलके, किसी की करेक्टर की स्ट्रेंथ होगी, किसी की वीएफएक्स की होगी, किसी की एनवायरनमेंट बिल्डिंग की होगी, किसी के पास 2D के आर्टिस्ट अच्छे होंगे, किसी के पास कोई एक टूल की स्ट्रेंथ होगी, माया या अनरियल या यूनिटी एक्सेट्रा, एंड किसी के पास ऑब्वियसली पब्लिशिंग या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की होगी। अब तो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और इस तरह के और भी मतलब प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, डिमांड उसकी वजह से भी बहुत बढ़ गई है। तो को प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी सी अगर हम चाहें कि रोशनी डालें, व्हाट इज दिस ट्रेंड, द इमर्जिंग को प्रोडक्शन मॉडल, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानी स्टूडियोज, and just give an example of how this works and how the people here benefit from it. सो को प्रोडक्शन का जो मॉडल है बेसिकली उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि पहले अर्लियर जो मॉडल था वो ये था कि एक क्रिएटर या एक स्टूडियो स्टोरी टेलर वुड कम अप विद अ कॉन्सेप्ट फॉर अ शो दैट दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो यू डेवलप अ शो एंड देन यू टेक इट टू द बिग ब्रॉडकास्टर्स, उसमें से कोई एक ब्रॉडकास्टर कमीशन कर देगा एंड देन यू गेट द शो प्रोड्यूस्ड। उससे क्या होता था कि 2-2.5 साल में एक शो प्रोड्यूस होता था, एक ब्रॉडकास्टर का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता था, और जो स्टोरी टेलर है, क्रिएटर है, जो स्टूडियो है वो क्रिएटिव स्टूडियो, वो एक शो में बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाता था। So this obviously is a risky move when you bring different stakeholders and parties together from different markets and geographies. So automatically क्या होता है कि अगर मैं एक स्टूडियो हूँ और एक स्टूडियो है मलेशिया में, और वो हम दोनों मिलके अगर एक अमेरिकन क्रिएटिव स्टूडियो के साथ कोप्रो करते हैं, तो सडनली जो अमेरिकन स्टूडियो है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसी का शो साउथ एशियन मार्केट में हम रिप्रेजेंट कर लें, हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिशिंग कर लें, और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में वो मलेशियन स्टूडियो कर ले। तो ऑटोमेटिकली एक फायदा ये हो जाता है कि ट्रांसलेशन सर्विसेज में हो जाएगा कि मैं कहूँगा अच्छा यार मैं ट्रांसलेट करके मैं एडिशनल मार्केट कैप्चर कर लूँ, मलेशियन स्टूडियो भी अपने लिए सोच लेगा, फिर उसके लिए क्रॉसओवर फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग डील्स में फायदा हो जाता है। और फिर ये कि एक स्टूडियो जो पहले एक शो में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता था और टाइम इन्वेस्ट करता था, वो अब एक साथ पैरेलल में 2 या 3 या 4 स्टूडियोज या 3 या 4 आईपीज में इन्वेस्ट कर सकता है। सो इस कलेक्टिव विजडम या इस कोलैबोरेशन की वजह से ये मॉडल शुरू हुआ। ऑब्वियसली इस मॉडल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हाउ डू आई नो दैट यू आर अप्रोप्रिएटिंग द राइट वैल्यू फॉर योर इनपुट कंपेयर टू मी। और ये चीज ट्रांसपेरेंसी से बिल्ड होती है, ये चीज ऑब्वियसली रिलेशनशिप से बिल्ड होती है। मुझे ये ट्रांसपेरेंटली ओपन अप होना पड़ेगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, मैं इतनी ही वैल्यू उस एक्विटी उस आईपी में अगेंस्ट एक्विटी लेना चाह रहा हूँ, ताकि ओवर प्राइस ना हो, अंडर प्राइसिंग ना हो। और इसके लिए को प्रोडक्शन मॉडल में जाने के लिए स्टूडियोज में आपस में कोलैबोरेट करना बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडियोज जब एक दफा को प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, देन दे कंटिन्यू टू डू को प्रोडक्शन इन फ्यूचर आईपीज एज वेल। और ये पाकिस्तानी स्टूडियोज के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि कोई रिबेट सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं है को प्रोडक्शन रिलेटेड, तो हमें कोई एडवांटेज नहीं है। तो एक्चुअली वी हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन वी गो अगेंस्ट studios like studios that are in Malaysia, South Korea, maybe in Colombia, maybe in India, maybe Canary Islands in Spain, जहाँ पे अगर वो को प्रोडक्शन करते हैं तो उनको गवर्नमेंट या तो रिबेट देती है या उनको ऑटोमेटिकली किसी तरीके से आईपी फंड के थ्रू उनको 20-30% इक्विटी में कैपिटल इन्वेस्ट कर देती है अगेन एंड डजंट टेक अ शेयर ऑन द इक्विटी। मगर पाकिस्तानी स्टूडियोज के पास अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली लेबर आर्बिट्राज है हमारे पास। अगर कोई कनाडा में कोई एनिमेशन की प्राइसिंग लगा रहा है तो वो हमारी एनिमेशन की प्राइसिंग से एटलीस्ट 3x 4x ज्यादा है। तो ऑल्दो हमें वो रिबेट का एडवांटेज नहीं है, मगर हमें लेबर आर्बिट्राज है। दूसरी चीज हमें जो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर इन द वेबिनार एज वेल, बट दिस इज समथिंग आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान कि देखिए पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर है लास्ट 2 इयर्स में उसे रियलाइज हो गया कि कैपिटल अगर मैं इन्वेस्ट करूँ रियल स्टेट में तो मेरे पास रिटर्न जो है अगेंस्ट डॉलर वो डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी प्रॉपर्टी से बैठे हुए जिनकी वैल्यू जो है वो 60% रह गई अगेंस्ट व्हाट इट वाज 2 इयर्स अगो।
तो अगर आप के पास अपॉर्चुनिटी हो कि पाक रुपीज में वो पैसे इन्वेस्ट करें, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो पैसा कितना क्लीन पैसा है, वो पैसा की अर्निंग कहाँ से आ रही है, वो टैक्स पैसा है या नहीं, बट दैट मनी कम्स इनटू अ स्टूडियो, और वो एसेंशियली हमारा रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट है, रेंट की कॉस्ट है। सो लोगों के पास रियल एस्टेट की बिल्डिंग खाली की खाली पड़ी है, कोई मशीनों में इन्वेस्ट करे, उसके बाद लोगों की सैलरीज दे, आईपी डेवलप हो लोकल रुपीज में, और उसके रिटर्न्स आएंगे डॉलर में। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि आपकी डॉलर टर्म्स में मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करवाऊं और आपको सारे रिटर्न्स आपके दुबई के अकाउंट में दे दूं, although that's not what the government would want. The government would want the money to come back in, but I'm just giving you the worst case scenario. Worst case scenario may be if I earn the dollars back into the Pakistani USD account to that investor in the form of white money. Suddenly अगर मैं उसको पार पैसे भी वापस कर दूं ना 4 साल में, कि मैं को यार 4 साल में मुझे इन्वेस्ट करो, मैं सिर्फ पैसे वापस करूंगा, उसके बाद जो भी रिटर्न होगा उसमें 50-50. So even that model works. And investing through Pak rupees, earning in dollars. I think अगर ये हम किसी तरह पॉपुलराइज कर दें इन लोकल इन्वेस्टर्स कि ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है, ये आईटी सर्विसेज में भी पॉसिबल नहीं, अगर हम एनिमेशन में आईपीज बनाएंगे या गेमिंग स्टूडियोज में गेम्स बनाएंगे, so then it is possible to earn in dollars, to invest in rupees. I think ये इक्वेशन समझना जरूरी है, और ये पाकिस्तानी लास्ट पॉइंट, पाकिस्तानी स्टूडियोज जो हैं वो स्पेशली एनिमेशन स्टूडियोज सिंगल हैंडेडली आईपीज खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्री प्रोडक्शन की स्किल सेट नहीं है। इमरान अजहर जो हमारे दोस्त हैं वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं और प्रमोट करना चाहते हैं। बाहर के स्टूडियोज जो हैं वो बहुत ज्यादा शोज डेवलप करके बैठे हुए हैं, और दे लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, especially in this global economic cash crunch. There are IPs fully developed, ready to go into production, being offered at a discount, and you can get a really good deal, really good equity, if you're willing to invest and work on the IP. Again, you need some investment, and if the local investor can fill the investment gap, you bring an IP, you can build something together. Over the next 10 years, हम multi-$100 million portfolio develop कर सकते हैं पाकिस्तान में। Yeah, brilliant points, Hassan. Very good wave of optimism, coming in. बड़ी अच्छी positive energy आ रही है आपकी गुफ्तगू से। बहुत सारे जो इस वक्त लोग ऑनलाइन हैं वो किसी ना किसी एनिमेशन स्टूडियो, किसी एड नेटवर्क या एड एजेंसी या वीएफएक्स स्टूडियो से ताल्लुक रखते हैं। कुछ के नाम मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं। मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडियोज हैं लाइक शार्प इमेज, जो 30 साल माशाल्लाह जिनको हो चुके हैं। अभी रिसेंटली अमीन भाई के स्टूडियो को 30 साल हुए। तो अब इतने लोग इतने अरसे से कर रहे हैं, तो ये को प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी तो पहले भी थी। तो ये सवाल ये मैं आसिफ भाई आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ कि को प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी तो पहले भी थी, अब इसलिए बढ़ गई कि ठीक है बाहर कॉस्ट ज्यादा हो गई, पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, आपने बोला लेबर का। दूसरा आपने ये भी बोला कि एडवांटेज जो बहुत बड़ा है वो है कि हम लोकल इन्वेस्टर जो है वो पिट रहा है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रियल स्टेट में करोड़ों रुपया, लेकिन डॉलर टर्म्स मेरी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन कर रही है। तो क्या इन्वेस्टर्स आपको इजीली, आप लोग तो माशाल्लाह कराची में बेस्ड हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग ज्यादा हैं, ज्यादा इन्वेस्टर्स भी हैं, बाकी पंजाब और लाहौर में भी हैं, हर जगह ही है। Where do you think are the good opportunities, like the first few steps जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कि जो आप उन्हें कहें कि यार ये वो रोड मैप है, ये वो पाथवे है कि मैं अगर आसिफ इकबाल, the guy who's been in the industry for long, seen all the patterns and waves and good and bad times, say कि ये 2 या 3 initial steps हैं करने से we can convince the local investors, we can go into co-production, because why did it not happen before? ओके फसी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं और अपने दूसरे साथियों को भी कि ऑलरेडी 3 फीचर फिल्म पे मैं वीएफएक्स सर्विसेज के अगेंस्ट को प्रोडक्शन कर चुका हूं। तो आई बीन थ्रू दिस को प्रोडक्शन मॉडल, और हमने 3 फिल्में की थी जिसमें हमने अपनी वीएफएक्स सर्विसेज को वो फीचर फिल्म की लाइव एक्शन तो वीएफएक्स सर्विसेज के अगेंस्ट। तो 2 पार्ट हैं इस अपॉर्चुनिटी में। एक पार्ट है एनिमेशन कंटेंट जो कि आपका टीवी के लिए या फीचर फिल्म एनिमेटेड या लाइव एक्शन फिल्म के लिए वीएफएक्स। दोनों मॉडल अवेलेबल हैं, और दोनों मॉडल जैसे आसान ने भी कहा, आसान तो अभी रिसेंटली भी आए हैं और मेरी भी 4-5 स्टूडियोज से बात हुई है, और आई एम एबल टू को प्रोडक्शन के ऊपर मेरे पास इस वक्त समझें कि तकरीबन 2 फीचर फिल्म हैं एनिमेटेड जो कि हम इमीडिएटली प्रोडक्शन में ले जा सकते हैं।
और मैं नहीं समझता कि उनमें से कोई भी फिल्म की जो कॉस्ट है किसी इन्वेस्टर के लिए वो $1 million से ज़्यादा होगी टू प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, ठीक है। बट जो अपॉर्चुनिटी मैं उसमें बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग भी मौजूद हैं, कि अगर हमें जो पार्टनरशिप मिल रही है उसमें, जैसे हसन ने कहा डिस्काउंट के ऊपर, तो वो डिस्काउंट कुछ इस तरह है कि हमें पर फीचर फिल्म कोई $2 million की इक्विटी मिलेगी, ठीक है। तो एंड आई डोंट थिंक कि हमारा कोई $1 million से ज़्यादा उस पर खर्च होना है। तो दैट्स अ बिग अपफ्रंट, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमारे पास बुक के ऊपर प्रॉफिट लेने का बहुत बड़ा मार्जिन है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अट्रैक्टिव है कि यार आप जिस दिन ₹10 खर्च कर रहे हैं उसी दिन आप बुक के ऊपर तो एटलीस्ट ₹20 आपके बन रहे हैं, तो 100% प्रॉफिट तो आपका है। उसके बाद आईपीज एंड एवरीथिंग उसमें वो अकॉर्डिंग टू द, और मेरा ख्याल है ये 50-50 का मॉडल बनेगा। बहुत सिनारियों में, सर्टन सिनारियों में जहाँ पे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बहुत हाई वैल्यू होगा या राइटर बहुत हाई वैल्यू होगा, तो वहाँ पे 45 या 40-60 का मॉडल बनेगा, जिस 40 आपको मिलेगा, 60 उनको मिलेगा। अच्छा, सेम गोज विद द फीचर फिल्म लाइव एक्शन में अगर आप वीएफएक्स पे जाते हैं तो देयर आर, ट्रस्ट मी, देन देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो आप वहां से ले सकते हैं। वी हैव द पोर्टफोलियो। पाकिस्तान में हमारे पास काम हम लोगों ने किया हुआ है, हमने यूएस मार्केट फिल्म डिलीवर की हैं, हमने एनिमेटेड शोज भी डिलीवर किए हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमें पोर्टफोलियो हमारे पास है या नहीं। तो ये दोनों एंड के ऊपर देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आईपी चलती रहती हैं, पैसे आते रहते हैं, देयर इज नो, देखें रिस्क तो होता है लाइक एनी अदर बिजनेस, लेकिन जिस कॉस्ट पे आप वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रिकूप करना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ रिस्क, वो हो जाता है। अगर आप यूएस प्राइस सेक्टर से देखें तो यस इट्स अ बिग रिस्क कि जी आपको वो काम जो है वो 4 times ऑफ पाकिस्तानी कॉस्ट पड़ रहा है, दैट्स अ बिग रिस्क। बट पाकिस्तानी कॉस्ट विच इज इवन इंडिया से हम 1/3 होंगे, तो हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। एंड दिस इज समथिंग जो सबसे बड़ा एनिमेशन बिजनेस का प्रॉब्लम है या वीएफएक्स बिजनेस का, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क है। जहाँ पे गैप आता है वहां पे आपके प्रॉफिट जो है वो चले जाते हैं। इस मॉडल में यू कैन लाइन अप फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, आप प्रोडक्शन को लाइन अप कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखें फिर वही बात है कि हमें वी नीड इन्वेस्टर्स, वी नीड सीरियस इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, जो कि इस इंडस्ट्री में आए और इन्वेस्ट करें, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। एंड आई थिंक अगेन हमें जो चीज़ पे फोकस करना होगा दैट इज कि हम वो रिसोर्सेज डेवलप करें इतने बिफोर वी गो इनटू दैट मार्केट। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हमारी रिक्वायर्ड हैं कि हमें रिसोर्सेज भी चाहिए टू स्केल अप, टू कैटर फॉर सच जॉब, एंड एट द सेम टाइम वी नीड इन्वेस्टर्स। थैंक यू आसिफ भाई। हसन, आपने एक बड़ी अच्छी बात की अपने पिछले कमेंट में, और मैं वापस आऊंगा जो कमेंट अभी आपने चैट में दिया है रिगार्डिंग हाउ टू कोलैबोरेट एज स्टूडियोज। मैं चाहता हूं कि हम एंडिंग नोट उस पर करें एज अ एक्शन पॉइंट कि भाई क्या स्टेप्स हैं, ये जितने लोग ऑनलाइन हैं इनके लिए क्या वो 3-4 स्टेप्स हैं, वो हम उस पर एंड में आएंगे। अच्छा, अभी आपने बोला कि गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ ममालिक में आईपीज को इंकरेज करने के लिए रिबेट देती कि अगर तुम लोकल आईपी बनाओगे या किसी के साथ को प्रोडक्शन में बनाओगे तो मेरे से X% ऑफ अपनी सैलरी जो एम्प्लॉयज की है ले लो। उसके लिए प्रूफ शो करो कि तुम्हारी उस आईपी में इक्विटी है या तुम्हारा अपना आईपी है। ओरिजिनल यहाँ से अपना आईपी बनाना और भी ज्यादा महंगा है, लेकिन किसी की आईपी पे जाके इक्विटी लेके उनके साथ को प्रोड्यूस करना अच्छा है। इसमें पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, आप हसन जानते हैं मेरी और आपकी इस पे पिछले 2 हफ्ते से बातचीत चल रही है, जो करंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के, वो बड़े कीन है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसपे इंडस्ट्री की मदद हो सके। तो आप जानते हैं कि एक प्रपोजल इस तरह का हम उनको दे रहे हैं, बहुत जल्द इसको भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं कि आप रिबेट दें इंडस्ट्री को। और इसी तरीके से कि आप एनिमेशन इंडस्ट्री के हवाले से इसमें जो सेगमेंट है वो यही है, मॉडल्स जो टर्की में फॉलो हो रहे हैं, जो मलेशिया में फॉलो हो रहे हैं, उन्हीं के एग्जांपल्स को लेते हुए, नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, कि अगर इनकरेज करें लोगों को, ठीक है आप लोग वेब सर्विसेज की तरह सर्विसेज ले रहे हैं, किसी ने वीएफएक्स कर दिया, किसी ने कैरेक्टर बना दिया, इन्वायरमेंट बना दिया, कीप डूइंग दैट, नथिंग बैड इन इट, बट टू इनकरेज पीपल टू गो इनटू आईपीज जिसमें ज्यादा बिगर चंक ऑफ द पाई मौजूद है, ज्यादा रिटर्न है, ज्यादा ट्रांस मीडिया अपॉर्चुनिटी है कि कल को वो शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाएगा, वो गेम बन सकती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, व्हाट इज द रोल टू सपोर्ट आईपीज
and to promote the idea of concept development. अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि रिबेट जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं चलता, क्योंकि रिबेट वहां पे चलता है जहां पे टैक्स पे किया जाता है और जहां पे टैक्स बहुत ज्यादा। कनाडा में चलता है क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा टैक्स है, तो वहां पे वो जो भी लेबर एम्प्लॉय होता है वो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो बच जाता है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बच जाता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से बच जाता है। हमारे यहाँ फंड चाहिए। सॉरी, मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरा रिबेट से मुराद ये नहीं था कि टैक्स का, मेरा रिबेट से मुराद था कि लेट से ओके, आपकी जो सैलरी इतना है खर्चा उसकी हो गया और पैसे मिल आईपी जाए। किया, हाँ, लेट से आपने सही 10 है। मिलियन खर्च किया और हुकूमत कहती है कि यार हम इसका 50% या 40% आपको देने को तैयार है, तो आप दी ठीक है, एंड जब आप सही प्रूव है, करेंगे कि आपको इक्विटी है उसमें, हुकूमत आपको 40% उसका आपके एम्प्लॉय की सैलरी दे दे, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि टैक्स सही नहीं है, है इसमें। ठीक है, सही है। तो हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर वो किसी ऐसे किस्म का कोई ऐसा फंड हो जिसमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि देखिए हमारे पास इंडस्ट्री में जो स्टूडियोज है ना उनका वर्किंग कैपिटल भी इशू है। मोस्ट स्टूडियोज ऑपरेट ऑन अ 2 मे बी 3 months सैलरी, 2 मे बी 3 months सैलरी का मार्जिन। सो किसी के पास बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेजरी में पैसे नहीं होते। और इसी की वजह है कि कोविड में 2-3 स्टूडियोज बंद हो गए, बिकॉज सडनली काम बंद हो जाता तो स्टूडियोज बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले 20-25 years में हमारे आसिफ भाई इज टेस्टामेंट टू दिस, मगर कितने सारे स्टूडियोज जो खुले, ग्रो किए, उसके बाद स्केल डाउन हो गए, बंद हो गए। तो और इसकी रीजन ये है कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हम नहीं बन सके। हम भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है। मतलब मेरी अपने स्टूडियो की जर्नी जो है वो बड़ी रिस्की है। यस, माशाल्लाह से वी हैव बीन ग्रोइंग, मगर very soon we have to find a product based model, otherwise we one big shock and then we could potentially scale down. तो एक तो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्किंग कैपिटल का ख्याल रखे, फंड क्रिएट करे, और फंड जैसे कि इग्नाइट का R&D फंड होता है वो प्रोजेक्ट्स को देता है, उसमें ऑब्वियसली जिस तरीके का वो प्रोसेस उनका करेंटली है, समटाइम्स 1-2 साल लग जाते हैं। आप अगर को प्रोडक्शन किसी इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ जा रहे हैं तो यू डू नॉट हैव 2 years। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील साइन हो जाती है, आपको एक सर्टेन टाइम पे रिलीज करना होता है प्रोडक्ट, आपको एपिसोड्स बनानी होती है, प्रोडक्शन टाइमलाइन बहुत टाइट होते हैं। अगर आप मूवी फॉर इंस्टेंस बनाने जा रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपको मूवी की 2 साल के बाद डेट फिक्स हो जाए, एंड देन यू कैन नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट की 6 महीने फंड्स लेट हो गए और अगली बार देंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम कितनी अच्छी इंटेंशन के साथ स्टार्ट हो, वो बिल्कुल भी मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे और इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के अंदर जो आई थिंक 2-pronged स्ट्रेटजी है। एक तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि यूथ को स्किल्स मिले ताकि वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसके साथ इंटीग्रेट करे, और साथ ही में जो इंडस्ट्री है उसको ये चैलेंज रहता है कि हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिल रहा। तो आई थिंक ये जो एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ऐसे वर्टिकल्स हैं स्किल्स के जो अप्रेंटिसशिप मॉडल पे चल सकते हैं। अप्रेंटिसशिप मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग मॉडल। ट्रेनिंग मॉडल में अगर बच्चा एक कोर्स ले रहा है तो वो 3 कॉन्टैक्ट आवर्स लेता है हफ्ते में और बाकी टाइम उसका अपना है, whether she practices or not, उसके अंदर इतना कॉन्टैक्ट टाइम नहीं मिलता। अप्रेंटिसशिप मॉडल में एक बच्चा आता है, 8 घंटे बैठता है और 3 महीने में वो डेमोन्स्ट्रेबल स्किल दिखा सकता है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर स्किल सेट, whether it's a 3D बिल्कुल asset building, whether it's animation, whether it's Unreal Engine। और अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से सब्सिडाइज करे उस बच्चे की सीट, जिसमें अगर कंप्यूटर का सिस्टम और बैठना और एयर कंडीशनिंग रेंट जो है वो स्टूडियो दे दे, मगर उस बच्चे का स्टाइपेंड या 25-30 हजार रुपए स्टूडियो को मिल जाए और कहें कि यार इसे बैठाओ 6 महीने के बाद, मेक श्योर वन ऑफ द 3 थिंग्स, या तो वो बच्चा अपनी फ्रीलांस पे प्रोफाइल बना के खुद काम करना शुरू कर दे, या फिर किसी स्टूडियो में 40-50-60 हजार में एम्प्लॉयमेंट कर ले, या फिर वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। आउट ऑफ दीज 3 जो स्टूडियोज ये अच्छे KPIs दिखाते हैं उनको पहले डिब्स मिले अगले आने वाले। और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम फसी यू एंड आई हैव डिस्कस्ड एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम्स ओवर, मगर व्हाट वी नीड टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि ये चीज इस पर्टिकुलर वर्टिकल में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर्ड टू Salesforce की सर्टिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस Salesforce की सर्टिफिकेशन इज मोर ऑफ ए ट्रेनिंग मॉडल, जहां पे आप 3 कॉन्टैक्ट आवर्स में 3 months में सर्टिफिकेशन की तैयारी करवाएं। वहां पे स्किल नहीं है, वहां पे नॉलेज एरिया ज्यादा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एक Salesforce की सर्टिफिकेशन के लिए या गूगल क्लाउड सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन के लिए आपको इंटरफेस पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। मगर अगर आपने 3D आर्ट बनाना है, you have to have spent 2,000-3,000 hours on making sure that you have trained your eye to be able to do QC that you need to do before you submit your work. You have to be able to see the visual
angles and understand the geometry. वो skills की training is almost like a musician being trained. Apprenticeship model को on करना चाहिए. अगर मेरे पास 25-30 free की बच्चे बैठे हुए हैं जिसके मुझे खर्चा पानी गवर्नमेंट से मिल रहा है, मैं साइड पे आईपी शुरू कर दूंगा भाई. मेरा आईपी शुरू करने का सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरी लेबर कॉस्ट, अगर मैं ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को एसेट बनवाने में लगा दूं, शोज के ट्रेलर बनाने लगा दूं, तो मेरे पास भी 5 से 8 जबरदस्त आइडियाज होंगे that I can go and show to people, maybe go to NSC and other international festivals. बड़ी अच्छी बात की आपने. These are great points. I've noted some of those. Hassan, we can take it up as a ANG committee as well to the government. And I hope कि जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं उनसे भी हम सजेशंस और सवाल लेंगे अभी तो, if they have things to add. आसिफ भाई, आपने हॉलीवुड के साथ भी बहुत काम किया अपने मुख्तलिफ अदवार के दौरान, जब आप मुख्तलिफ स्टूडियोज के साथ एसोसिएटेड रहे. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं हॉलीवुड के साथ काम करना. आई एम श्योर अगर चाहते हैं तो भाई कोई हाथ खड़ा करके या कुछ बताएं ताकि पता चले कि मैं अकेला ही नहीं बोल रहा. वो देखो एक तो कह रहा है. तो कुछ हॉलीवुड में भी काम करना चाहते हैं, आई एम श्योर. अच्छा, तो जो हॉलीवुड के साथ काम करना चाहते हैं स्टूडियोज में आके कि वो आए यहाँ पे कोई VFX का काम लेकर आए या किसी भी और किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या टिप्स आप देंगे? What does Hollywood look up to, and how can people go and get that business? पति करंट जो हमारे स्टूडियोज की सिचुएशन है, हमारा आई डोंट थिंक कोई भी स्टूडियो इस साइज पे है कि वो कोई छोटे लेवल का भी काम इस वक्त VFX का ले सकता हो. कोई भी स्टूडियो ऐसा नहीं है इस वक्त. ठीक है, उसकी वजह ये है कि there are only couple of guys in the industry जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, और उनमें कोई भी कंपनी VFX के मैं VFX के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इस साइज पे नहीं है जहाँ पे वो इतने रिसोर्सेज लगा सकें इन हाउस कि वो, मतलब एक छोटा प्रोजेक्ट भी आप करेंगे तो समझे आप कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि 200-300 शॉट्स. अब 200-300 शॉट्स ऑन 4K करना, तो हमारे पास अब आज वो इक्विपमेंट भी नहीं है स्टूडियोज में, उस तरह के वर्कस्टेशन भी नहीं है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि जिससे हम वो चीज़ें करें. और इतने मतलब मोस्टली ये काम जो फर्ज करें न्यूक के ऊपर होता है या हुडिनी पे होता है, और उसकी हमारे पास एक्सपर्टीज लेवल ही नहीं है. तो हमें VFX के लिए भी हमें लोगों को ट्रेन करना होगा, हमें रिसोर्सेज लेके आने होंगे. देखिए काम मैंने आपको बताया कि काम देखें, एक मॉडल है कि आप VFX पे आप को प्रोडक्शन पे जाते हैं तो दैट्स वेरी इजी पाथ. आप उससे बड़े आराम से अनलिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स आपको मिल जाएंगे. लेकिन पॉइंट हमें चैलेंज ये आएगा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, किसी भी स्टूडियो के पास नहीं है इस वक्त. एनिमेशन के हैं, आई कैन एग्री, मतलब बहुत सारे स्टूडियोज हैं जिनके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एनिमेटर्स बैठे हैं, बट VFX आर्टिस्ट नहीं रहते पाकिस्तान में, तो वेरी फ्यू, और वो इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में स्कैटर हुए हैं. तो किसी के पास एक है, किसी के पास कोई, किसी के पास कोई. तो ये एक चैलेंज है हमारे पास गोइंग टू द हॉलीवुड. तो रिसोर्सेज यस हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है. अब एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर दूं को प्रोडक्शन के ऊपर. देखिए को प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज और भी होता है अगर गवर्नमेंट ये काम करे, और वो ये कि अगर आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स होते हैं दुनिया में, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है, जर्मन गवर्नमेंट के साथ है, किसी कोलंबियन गवर्नमेंट का फर्ज करें कि किसी यूरोपियन यूनियन के साथ है या किसी कंट्री के साथ है. तो अगर आपके पास ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के अगर आपके पास को प्रोडक्शन एग्रीमेंट होंगे पाकिस्तान के पास, तो होता ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूरोप में खास तौर पे वो फंड होते हैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. ठीक है, या गवर्नमेंट के फंड से या फिल्म फंड से, यूरोपियन फंड हो गया, या बहुत सारे मुख्तलिफ फंड हैं, उनसे वो प्रोजेक्ट होता है. अगर आप ऑफिशियली पार्ट ऑफ अ को प्रोडक्शन एग्रीमेंट हैं और आप फिर किसी स्टूडियो के साथ ज्वाइंट हैंड करते हैं, तो फिर आपको वहां की फंडिंग अवेलेबल होती है टू प्रोड्यूस दिस थिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, उसके लिए सर्टेन ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, वो चाहिए होती हैं चीजें, बट ठीक है वो आप कर सकते हैं. लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारी जैसे सिचुएशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है. इसमें थोड़ा सा इस पे मैं और सवाल करूंगा जल्दी से, अगर आप ऐड कर दें कि ये अपॉर्चुनिटी क्या अभी पाकिस्तान में कोई G2G को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स हैं जो हमारे स्टूडियोज जिनको इनकैश कर सकते हैं,
या जिस तरह नहीं, आपने कोई कनाडा का एग्जांपल दी, तो कोई भी हमारे नहीं। बहुत ऐसे स्टूडियोज हैं जो जिनका कोई दफ्तर या कोई ब्रांच कनाडा या यूके या यूएस में है, लोगों ने दफ्तर खोले होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इंटरनेशनल बिजनेस. डू यू थिंक बेस्ड देयर दे कैन टैप इनटू दीज अपॉर्चुनिटीज? यस, हमारी एम्बेसीज इस पे काम कर सकती हैं, हमारे कमर्शियल काउंसलर इस पे काम कर सकते हैं, ये इसी तरीके से होता है। और देखें, टू स्टार्ट ऑफ मैं तो ये कहूंगा कि पाशा या पीएसीबी या इग्नाइट, इनमें से कोई सबसे पहले तो हम ये करें कि एक $3,500 की इंडस्ट्री के ऊपर एक हर साल एक रिपोर्ट प्रिंट होती है विच डिटेल्ड ऑल दीज थिंग्स। तो पहले तो ये कि कोई पाशा को आप कहें या इग्नाइट को कहें या पीएसीबी को कहें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो रिपोर्ट खरीदें, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि कौन सा मुल्क किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, लाइक अबाउट 100, 150, 200 पेजेस की होती है और हर साल अपडेट होती है। तो उसके अंदर ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। मैंने मतलब वो रिपोर्ट पढ़ी थी अबाउट इट्स बीन लाइक 15 ईयर्स बैक। तो उसमें ये तमाम चीजें हैं कि जर्मनी में आपके पास किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं, नीदरलैंड में किस तरह की हैं, यूके में किस तरह की हैं, यूएस में किस तरह की हैं, कौन से स्टूडियो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एवरी लिटिल डिटेल इज देयर। तो वो हमारा एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। और उसके साथ ये है कि ये को प्रोडक्शन के ऊपर हम इस तरीके से कोशिश करें तो हम कुछ ना कुछ निकाल के ला सकते हैं। अदर देन दैट, अगर हमारे इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं तब तो ये गेम हमारे लिए ये पूरा बिजनेस मॉडल बहुत आसान और बहुत अच्छे स्पीड पे हम इसको डेवलप कर सकते अच्छा, एक चीज हैं। बताइएगा, कौन सी रिपोर्ट का नाम बताइएगा दोबारा? वो मैं आपको फसी कर दूंगा। वो जस्ट गूगल इट, रिपोर्ट ऑन एनिमेशन इंडस्ट्री, तो आपके पास आ जाएगा। चलो ठीक, थैंक यू. कमिंग टू यू हसन, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो और भी है क्रॉस कोलैबोरेशन की, वो है पाकिस्तान में, कि आपके पास लेट से कोई अच्छा आईपी है, चाहे वो एनिमेशन का है, जैसे यहाँ पे असलम सांगड़ साहब भी ऑनलाइन है, इनके पास माशाल्लाह बड़ा अच्छा आईपी है, इनका बड़ा अच्छा यूट्यूब पे चैनल है, बाय द वे बिलियंस ऑफ व्यूज. तो उसकी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो गेम में भी जा सकता है. सिमिलरली किसी के पास कोई अच्छा गेम का आईपी है, जैसे पाकिस्तान में हमारे खुरम भाई हैं जिनके पास स्केरी टीचर के नाम से एक बड़ा जबरदस्त आईपी है, उसकी एनिमेशन सीरीज बन सकती हैं, उसके कार्टून्स बन सकते हैं. देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी इवन इन पाकिस्तान फॉर अस टू कोलैबोरेट विद ईच अदर amongst the animation and the gaming studios. Can you shed some light on that? Is this true or is it too wishful of my thinking, कि मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फसी। स्केरी टीचर की आपने बात की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्केरी टीचर की आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, and we've had some early conversations with Ali also. How can we, sort of bring the animation industry closer to the gaming industry? Because सच बात ये है कि आपको खुद ही पता है कि बड़ा एक मेजर जियोग्राफिकल डिवाइड है एनिमेशन इंडस्ट्री। कराची में ज्यादा स्टूडियोज हैं, आर्टिस्ट हैं, टैलेंट है काफी सारे। हमारे एनिमेशन का टैलेंट जो है वो गेमिंग स्टूडियो में एनिमेशन और आर्ट डिजाइन और गेम डिजाइन का काम करता है, और ज्यादातर गेमिंग स्टूडियोज जो है वो लाहौर में है। आई थिंक जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स है, जब से हमने कमेटी में बना के कुछ मीटअप्स कराए, लोगों को मिलाया है, तो आई थिंक थोड़ी फेमिलियरिटी बढ़ी है। बट अगर हम इसको स्पीड अप कर दें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आ जाएंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्केरी टीचर एंड अदर गेमिंग स्टूडियोज जिनके पास कोई भी ऐसा गेम है जिसकी रीजनेबल फॉलोइंग है, आई थिंक उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम बन सकता है। स्केरी टीचर तो एट अ पॉइंट विद नाउ आई थिंक दे कैन टारगेट अ वेरी हाई लेवल आईपी. They can target a production IP of a 52 episode series, maybe a 7-minute long series of easily $1.5 million, $2 million, and they can reach out to international distributors and really target it, towards the North American market. और जो थोड़े से छोटे लेवल पे हैं, they can start with self publishing on YouTube, and I'm sure जो studios यहाँ मौजूद हैं जो एनिमेशन कर रहे हैं, I think they would be more than happy to partner. I would love to speak to someone. I think Aslam would love to speak to someone. अमीन भाई बैठे हुए हैं, नादिर हैं, और जो दूसरे स्टूडियोज हैं, आई थिंक शमून ने भी सवाल पूछा है, उनके पास काफी सारे लोग बैठे हुए, पाइपलाइन सेट है और बहुत तेजी के साथ एटलीस्ट यूट्यूब लेवल का कंटेंट बहुत तेजी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर हम ट्रेनिंग से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप मॉडल पे जाएं तो सडनली वी कैन हैव thousands of people over the next few years who could be contributing to at least YouTube level content development. सेल्फ पब्लिशिंग के लिए, स्टार्टिंग लाइनअप जिसे कहते हैं, स्टार्टिंग लाइनअप के लिए, मे बी
टीम ए, टीम बी, टीम सी होती है, तो हर लेवल पे कंटेंट प्रोड्यूस होना है ना ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हमें तो बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाइपलाइन भी सेट करी। तो पाकिस्तान की गेमिंग स्टूडियो, एनिमेशन स्टूडियो को ज्यादा आई थिंक मिलाना है। आई थिंक दिस इज समथिंग Fasi, you and I can also take it up in the committee meeting. What can we do Yeah. to really do a B2B formal, maybe a fast pitching session? क्योंकि हमने अमूमन किया है वो एनिमेशन और गेमिंग को आपस में इस एंगल से नहीं मिलाया। आई थिंक अच्छी पोटेंशियल अवेलेबल है, और ये तो बहुत आसान हो जाएगा मॉडल करना कि अगर हम दोनों उस नई आईपी में किसी तरीके से इक्विटी शेयरिंग पे जाते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइसिंग पे काम हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क दोनों पार्टीज शेयर कर सकती हैं, और अगर चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं तो देन यू टेक देम अप टू अनदर लेवल। आई एम ग्लैड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन हसन। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मेरे ख्याल में जो स्टूडियोज यहाँ पे कुछ ऑनलाइन हैं और जो नहीं भी हैं, जो पाशा की सेक्रेटरीट टीम से लोग ऑनलाइन हैं, सफा एंड अदर्स, प्लीज डू नोट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम एक मैच मेकिंग इवेंट करें, स्पीड डेटिंग ऑफ सॉर्ट्स। आई थिंक ये पहले भी मैं कमेटी में पुट अप कर चुका हूँ, जिसमें one game studio guy meets the other, or one game studio guy meets one animation studio guy, and you switch after every 15 or something minutes, like a speed dating's done, so that you understand what they do and you get to know more people in a very short span of time, and then you can figure out the synergies amongst the two of them. अच्छा, मैं क्योंकि कुछ सवाल जल्दी से एक दो करके बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे पास, उसके बाद मैं चाहता हूँ फ्लोर ओपन करें एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑल्दो हसन आपने बहुत सारे सवाल चैट में जवाब दे दिए हैं, बट कुछ जो नहीं है उनको हम पूछ लेंगे। So AI has disrupted almost everything since the last year 2022 में जब ChatGPT आया, और अब Gemini भी आ रहा है, एडवांस हो गया, ChatGPT 4 Omni आ गया, Sora हमने देखा जो कि बहुत जबरदस्त रेंडर्स निकाल रहा है। It's very quickly headed somewhere phenomenal in the next 3, 4, 5 years. Where do you see, starting from you, Asif bhai, I'll take this, where do you see the real disruption in the animation industry? Where do you see the opportunity for us as an industry to tap into seeing कि जब AI जो है वो काफी ज्यादा helpful होगा in our animation pipelines? What's your take on it? जी, AI is currently very helpful in the pipeline. बहुत सारे tools ऐसे हैं जो आज की डेट में भी बहुत helpful हैं, स्पेशली प्रोडक्शन डिजाइन के, कॉन्सेप्ट के, राइटिंग के, और अब एसेट डेवलपमेंट के भी बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं। तो इट्स जस्ट मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। एआई के ऊपर एक इस एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, इस पे एनिमेशन गिल्ड ने बहुत डिटेल्ड एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और उन्होंने काफी डिटेल कोई अबाउट 3-4 मंथ तक उन्होंने काफी डिटेल एक रिसर्च की है इसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू देम करंटली इस वक्त यूएस, मैं यूएस का सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि वो रिपोर्ट मेजरली यूएस के ऊपर है और उन्होंने पूरी रिसर्च की है। तो दे हैव अबाउट लेट्स से रफली 600,000 पीपल वर्किंग इन द एनिमेशन इंडस्ट्री। So to them next 3 years to 5 years में तकरीबन half of the workforce will be job, ठीक है। और ये एक मतलब एक रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। तो डिसरप्शन तो है, it's a big disruption. It's actually not new tool, it's a new economy अगर आप इसे कहें। This entire system of production और जो इस पर tools हैं ये सब कुछ चेंज हो जाएंगे in next 3 to 5 years में। Though it will be more of a creativity industry, because जहाँ पे जो फर्ज करें कि somebody who can come up with a concept will be able to produce by himself or by the help of couple of guys, he will be able to produce a show. तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा for companies to survive and companies how to cater this situation. Oh, this is one side. The other side is the opportunity. अच्छा, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास वो ट्रेन रिसोर्सेज इतने नहीं, तो अगर हम लोगों को इस टेक्नोलॉजी यानी एआई के ऊपर अगर हम लोगों को ट्रेन करेंगे तो हमारे यहाँ जॉब लेस कम होंगे, बल्कि जॉब हम क्रिएट ज़्यादा कर रहे होंगे। तो विल बी क्रिएटिंग मोर जॉब, क्योंकि वेस्ट के लिए इशू ये है कि जो ऑलरेडी उनकी इंडस्ट्री में लोग मौजूद हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उनमें से एवरीवेयर देयर इज दिस थिंग कि हाफ ऑफ देम आर गोना बी जॉब।
हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास वैसे इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारे लिए इसलिए आज से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अगर हम अभी अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर और उन्हें उन्हें इस तरह की मतलब टेक्नोलॉजीज के साथ हम ट्रेन करते हैं और उसको इवॉल्व करते रहते हैं, बिकॉज एज यू सेड के विद इन फ्यू मंथ्स कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जेमिनी आ गया, सौरा आ गया, सौरा के बाद फिर गूगल का भी वीडियो जनरेटर आ गया है, तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम इसको अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। दिस इज हाउ आई फील के क्योंकि हमारे यहाँ अगर फर्ज करें 2-3 हज़ार लोग होते तो ये फिर ये था कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वेरी गुड। अब मेरा ख्याल है सिर्फ सास की कमी रह गई है, वो सोरा थे आ गया सी उन सस रह गई। तो लेट्स सी बिल्कुल के व्हाट्स नेक्स्ट। यू राइट, एवरी फ्यू मंथ्स वी सी समथिंग न्यू कमिंग अप, but I see it as an Yeah. opportunity. I don't see it as a threat. I think it's a great opportunity for learning, for transforming, especially in terms of the animation studios की जो pipeline है उसमें बड़ी मदद मिल सकती है। एक बस इसके ऊपर मैं एक छोटा सा अगर ऐड कर दूं हाँ कमेंट। हाँ प्लीज, एक तो फिर मुझे उसके बाद मैं लास्ट आसिफ क्वेश्चन पे आना है और फिर हमने सवाल लेने हैं। सही आसिफ भाई ने एक बहुत अच्छी बात कर दी। आई थिंक बस वो बात जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है कि दिस इज a new economy, it's a new market, it's a new vertical, or it will completely transform, it'll create new opportunities for content creators। और जो हम स्टूडियो स्पेशली जो सर्विसेज में हैं एनिमेशन स्टूडियो, मैंने तो अपने ऑफिस में एक डूम्सडे क्लॉक चला दी है 31 दिसंबर 2025 की, कि आई थिंक 31 दिसंबर 2025 तक जो है ना वो बिजनेस एज यूजुअल है, उसके बाद नहीं है। फंडामेंटली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। I think somehow we need to invest in building some IP, some product, some brand that could stand on its own. If we are able to invest over the next 2-3 years into an IP of our own, तो अगर हमें सर्विसेज से कोई धचका भी लगता है तो we will at least have an IP, because देखिए अगर वो IP की अगर recognition है, following है, subscribers हैं, users हैं, तो AI जो है ना वो उसको replicate नहीं कर सकता। और अगर replicate करे तो आप ही करेंगे ना, और आप करेंगे और आप उसको और कोई और रेप्लिकेट करके YouTube पे पब्लिश करेगा, तो चूंकि आइडेंटिटी मैनेजमेंट है तो आप ही को उसके पैसे मिल रहे होंगे। जैसे स्केरी टीचर के ऊपर बहुत सारे लोग स्केरी टीचर की वीडियो बनाते हैं जस्ट सो दैट दे कैन ब्रिंग द ऑडियंस टू देयर चैनल, मगर वो पैसा तो उसी बंदे के पास जा रहा है ना जिसने आईपी बनाई है। तो आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन बिल्डिंग समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइजेबल, समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस, Absolutely. समथिंग दैट कैन नॉट बी जस्ट कॉपीड एंड चीटेड अवे विद। बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल में। amongst the top 2-3 key takeaways from today's session, this is one. My last question, and this is to both of you gentlemen, Asif bhai and Hassan. Please be quick and let's have a short answer. अब मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा होगा। देखें, अभी आपने बात की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, अब लोग जानना चाहते हैं स्पेसिफिक इंटरनेशनल मार्केट्स कौन सी हैं, कौन से किस नेचर के वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पाकिस्तानी स्टूडियोज में जाके टारगेट करें, and what are those concrete steps? Let's list down the top 3 steps that Pakistani animators and studios should take to break into that international animation production scene, whether it is for co-production, co-IP development, or even if it is, let's say, for just services. And what resources or platforms can be helpful? So, SIGGRAPH, NSE, MIPCOM, and others that Pakistani studios should be at or should connect with to connect better with international clients and turn that opportunity into a business. Starting from you, Hassan, and then Asif bhai. अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कोई ये आई नो यू वांट मी टू बी वेरी प्रिस्क्रिप्टिव, बट आई कैन नॉट बी वेरी प्रिस्क्रिप्टिव बिकॉज इट, देखिए अपॉर्चुनिटी हर जगह है। मैं सिर्फ इसमें जो ना प्रिंसिपल आपको समझाऊंगा, जो मेरा प्रिंसिपल रहा। मेरा प्रिंसिपल ये है कि 1-2 इवेंट साल में चूज करें एंड देन कीप गोइंग टू दोज इवेंट्स। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक सर्टन काइंड ऑफ ज्योग्राफी से लोग आते हैं, आपकी वहाँ पे सलाम दुआ बनेगी, जान पहचान बनेगी, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें, दोस्तियां बनाएं। 2 से 3 साल में आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, आपको वहीं पे कोप्रो भी मिल सकता है, आपको वहीं पे सर्विसेज भी मिल सकती हैं। बट यू शुड नॉट डू कि इस साल में पैसे ज्यादा आ गए तो अमेरिका किड स्क्रीन कर लेता हूँ, इस साल पैसे नहीं है तो किड स्क्रीन छोड़ दो, इस साल मैं दुबई चला जाता हूँ। आई थिंक उससे फायदा नहीं होता। आप साल के 1 या 2 इवेंट पिक करें, और अगर आपने बड़े इवेंट सुनने हैं तो वो 3-4 इवेंट्स है। जी एनएससी है, उसमें फिनिश प्रोडक्ट जाते हैं, आईपीज जाती हैं,
जैसे हमारी इस दफा पाकिस्तान की जा रही है माशाल्लाह से, ग्लास वर्कर जा रहा है, इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। वेरी बिग। मिडकॉम है अक्टूबर नवंबर में, सर्विसेज के लिए अच्छा है। किड स्क्रीन है अमेरिका में, जनवरी फेब में होता है, बहुत अच्छा है। एशियन साइड पे जाएंगे तो कोका का साउथ कोरिया का होता है, क्रिएटिव होता है मलेशिया का होता है। मगर कोई भी पिक करें, मैं रेकमेंड करता हूँ 2 पिक करें। नई गाड़ी ना लें इस साल, 2 इवेंट्स पिक करें खर्चा करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें, और डोंट से कि यार मैं तो गया था किड स्क्रीन 4 महीने हो गए कोई बिजनेस नहीं मिला। ऐसे नहीं होता। आप एक दफा जाएं, 2 दफा जाएं, तीसरी दफा जाएं, आपको आपकी दोस्तियां बनेंगी। दिस इज को प्रोडक्शन जो है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग इन बेड। ये कोई वो नहीं है, ओवरनाइट बिजनेस नहीं है। इसमें लोगों से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। यू हैव टू शो अप, यू हैव टू मेक देम फील कि यू आर हियर टू स्टे। ये बार बार बंदा आ रहा है, ये आज मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो 17 साल किड स्क्रीन, 17 साल से किड स्क्रीन आ रहे हैं, छोड़ते नहीं है, 2 शोज करते हैं साल में। But consistency is the key. Opportunities are almost everywhere. That's the message from Hassan. Asif bhai, what's your take on the concrete steps that these studios should take? मैं आप लोगों ने जो अभी गेम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से किया था, डू द सिमिलर थिंग ओवर मिडकॉम इन अक्टूबर, ठीक है, वेदर इस साल करें या नेक्स्ट ईयर करें, हैव अ पाकिस्तानी स्टॉल, और वहाँ पे कंपनीज को आप ले जाएं यहाँ से। दैट्स द बिगेस्ट इवेंट मिडकॉम जो अक्टूबर में होता है, सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग वहीं पे होती है। तो आप वहाँ पे स्टॉल लें और आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन, और हसन ने जैसे कहा कि ये टू कंटिन्यूसली गो ईयर आफ्टर ईयर, तो बट स्टार्ट विद स्टॉल। हमारी वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉल, जहाँ पे हम वहाँ पे बैठें, अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करें, वहाँ पे मीटिंग्स करें, वहाँ से डेवलप करें चीज़ों को और शेयर करें। क्योंकि वो जैसे कि हमने पहले भी बात की है, कोई एक स्टूडियो नहीं है, हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। द फर्स्ट स्टेप आई वुड सजेस्ट, इसके स्टॉल लें और उसके ऊपर आप एक डेलीगेशन यहाँ से लेके जाएं और वो वहाँ पे प्रेजेंट करें। स्टार्ट फ्रॉम दिस। इंडिविजुअल्स के ऊपर आपकी प्रेजेंस फील नहीं होती, लेकिन अगर 2, 4, 5, 6 कंपनीज हैं, जैसे हसन ने भी पहले कहा, ये एब्सोल्युटली राइट, कि वो एक प्रेजेंस फील होने लगती है कि यार देयर इज समथिंग हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और आई थिंक दैट इज वन शो जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। यू विल गेट ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। फिल्म के भी मिल जाएंगे आपको टीवी के भी मिल जाएंगे, आपको चाइनीज भी मिल जाएंगे, आपको अमेरिकन भी मिल जाएंगे, आपको यूरोपियंस भी मिल जाएंगे। तो इट्स अ मेगा इवेंट एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ, आप अगर स्टॉल वगैरह वहाँ पे करते हैं तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से हम स्टार्ट करें और पाकिस्तान का एक पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि अब माशाल्लाह हमारे यहाँ 4-5 फीचर फिल्म बन चुकी हैं, हमारा और बहुत सारा पोर्टफोलियो है। वो तमाम पोर्टफोलियो एक, मैंने पहले भी ये सजेस्ट किया था, सजेस्टिंग अगेन, कि एक पाकिस्तान की रील बनाएं कि ये पाकिस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री का आउटपुट है, और वो मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा आउटपुट है और काफ़ी रीजनेबल है, और उसके ऊपर हम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें जाहिर है अकॉर्डिंगली अब हमें बैठ के, जैसे आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि 1-on-1 मीटिंग होनी चाहिए बिटवीन स्टूडियोज, और हम लोगों को आपस में बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इंडिविजुअली ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, कलेक्टिवली आप लोगों ने भी, जैसे हसन ने भी कहा, कि कलेक्टिवली ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा फास्टेस्ट रूट जो होगा इससे, वो कलेक्टिवली होगा, और हमें कोई फॉर्मूला ऐसा डिवाइस करना पड़ेगा कि जिससे कंपनी फॉर अ टाइम बीइंग मिलकर साथ में काम करें, एंड देन इससे ग्रो दे कैन वर्क सेपरेटली। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि अब हम क्विकली, अगर किसी के कोई सवालात हैं, ऑल्दो तकरीबन तमाम सवालात के जवाबात चैट में हसन ने दिए हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज का जो बटन है जूम में, वो दबा के फिर बता दीजिए, तो वी विल अनम्यूट यू। एक जो की टेक अवे मैंने अभी देखा है इन तमाम गुफ्तगू में, वो है कि सब एक दूसरे को मिले भाई, को प्रोड्यूस करना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मिलना जरूरी है। यहाँ पे इस्लामाबाद में एक ट्रेंड है BYOC के नाम से, ब्रिंग योर ओन कॉफी या बाय योर ओन कॉफी, जहाँ पे महीने में ना एक बार एक मीटअप होता है और सारे CXOs मिलते हैं। हर कोई आता है, अपनी कॉफी परचेज करता है, कॉफी शॉप में बैठते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो पहली बार मिल रहे होते हैं। हालांकि इस्लामाबाद बड़ा छोटा सा शहर है और इंडस्ट्री भी बहुत छोटी है। तो आई थिंक ये कराची में जो लोग यहाँ मौजूद हैं ऑनलाइन, और जो लाहौर से या किसी और शहर से, आप भी अपने इस तरह से BYOC शुरू करें। वो एक 31 मई को इस्लामाबाद में एनिमेशन एंड गेम्स का भी एक मीटअप हो रहा है। क्या कहते हैं, इदराक वाले और मूनशॉट एंड अदर्स आर डूइंग दैट।
तो इस तरह के मीटअप्स आप ज्यादा से ज्यादा रखें, कराची में रखें, लाहौर में रखें, दूसरे को मिले, उनके बारे में जानें। जी हारिस, माय फेलो मेंबर फ्रॉम द एएनजी, आप प्लीज, आपने हाथ रेस किया। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब वालेकुम। खैरियत से होंगे? आ, एक तो ये बात थी कि गेमिंग के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ, कराची में होता हूँ, और मैं हसान को भी ऑफर कर चुका हूँ, अमीन भाई भी नजर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं कि मिलें, बैठते हैं। गेमिंग है, एनिमेशन है, आसिफ भाई को भी मैंने बोला है, क्योंकि देखें, जो अब एनिमेशन इंडस्ट्री में जैसे देख रहा हूँ, ये गूगल जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो ये समझता है कि हम एआई के थ्रू इतनी एनिमेशन लेंगे कि अभी यूट्यूब पे मैसिव कंटेंट पुश हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ एआई। आई नो समवन जो इस्लामिक स्टोरीज के ऊपर काम करे, एक बंदा एआई से बैठ के 30 स्टोरीज इस्लामिक कन्वर्ट कर दिए, सिर्फ जस्ट वन रिसोर्स एनिमेटेड है ओवरऑल, और ही इज लुकिंग फॉर फंडिंग। इनिशियली समवन गेव हिम सम मनी, ये पार्टनरशिप मॉडल पे आते हैं, और उसने बना के कुछ सैंपल्स भी दिए, 30 एपिसोड का है वो। तो एक बंदा भी ये काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। तो मेरा तो ये है, सबको देखना चाहिए एआई को। और लाहौर में गेमिंग स्टूडियोज ऑलरेडी अपनी आईपी के लिए वीडियोस बना रहे हैं, और वो अपने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चला रहे हैं, सो दैट दे विल मेक मोर मनी। तो मेरा सबको ये सजेशन है कि गेमिंग, और जिस तरह हसान ने ये रेज किया पॉइंट, गेमिंग और एनिमेशन वालों को मिलना चाहिए, और फसी भाई का भी आइडिया बहुत जबरदस्त है। ये बस मेरे सजेशन से, सवाल कोई नहीं है, कि मिले तो काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि वो बोनी आप कर लें, तो पहला आप वो सजेस्ट करें ना वेन्यू, और लोगों को बताएं कि कराची में BYOC यहाँ हो रहा है, तो रख लें। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं और रियाद में मिला, रियाद में ये इकोसिस्टम बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, नया नया बन रहा है। वो हर मंगल को ना कैफ्ट है वहाँ पे, किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ना 8-10 CXOs मिलते थे। एक दिन उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे बुला लिया। मैंने कहा ये क्या इवेंट है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम आते हैं, हम सब अपना अपना नाश्ता खरीदते हैं और यहाँ पे आके कैफे में बैठ जाते हैं। और ये 10 CEOs बैठ के, एनिमेशन से, गेमिंग से थे, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट्स टू डू, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या अपॉर्चुनिटी है। मैं अमेरिका से आया, मैंने ये देखा, वो कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया में, मैंने ये देखा। तो वो कलेक्टिव विजडम देखे ना, उन 10 लोगों का, वो कलेक्टिव विजडम उस टेबल पे 2 घंटे में शेयर हो रहा है, और कहते हैं हम सब ने महीने में ये वाला ट्यूसडे वेकेंट रखा होता है। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज करने की। जी असलम भाई, द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी कॉल इट ऑफ। असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सबसे हसन भाई से भी रहा है, आसिफ भाई से भी मीटिंग रही है, अमीन भाई से भी लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने भी ये ऑफर किया हुआ है कि किड्स लैंड एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल मॉड्यूल रहा है मेरे पास, और 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस व्यूज आते हैं। डेली का ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1.5 मिलियन जो है वो ट्रैफिक आता है किड्स लैंड पे। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने 2 से 3 IPs और बना दी मैंने। अच्छा, उस पर भी तकरीबन मेरी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर लोगों को ऑफर करूंगा कि को प्रोडक्शन हो या किसी चीज़ में भी, अगर वो आ सकते हो साथ काम करें, और इस पर बैठ के बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये है। जबरदस्त। और वो मेरा IPs ख्याल है यानी कि असलम भाई, यूट्यूब IPs हैं, और इस पर काम किया जा सकता है मिलकर, जो भी प्रोडक्शन साथ मिलकर काम करे। Hassan, I think you and Haris and Azam Mughal Bhai, you guys who are based in Karachi, Asif Bhai, Amin Bhai, all of you, you have this brilliant opportunity to meet and अमीन भाई इज बॉस। हाँ हाँ, सब सब बॉस हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब सबको जो है ना, वो बॉस के इर्द गिर्द के सारे वॉल्ड गार्डन्स तोड़ के एक दूसरे को ट्रस्ट करना है। जब आप ट्रस्ट करेंगे, आप शेयर करेंगे, इंशाल्लाह कारोबार भी बढ़ेगा। मेरा बिल्कुल। जी बहुत, जी सॉरी, अच्छा, so we've exceeded the time allotted for this session. Thank you so much everybody for joining in. I really appreciate. This is the webinar series that we started as Pasha's Animation and Games Committee. And Game On Pakistan means कि अब पाकिस्तान का गेम ऑन हो चुका है। ये पाकिस्तान का वक्त है, हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जाके पाकिस्तान के लिए इनकैश करनी है। वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू बी होपफुल। अपना सबका ख्याल रखें। थैंक यू। जब हमारा नेक्स्ट वेबिनार अनाउंस होगा तो प्लीज डू ज्वाइन अस, वील टॉक अबाउट इट। की टेक अवे आज यही है कि मिल बांट कर जाओ, खाओ, पाए का साइज बढ़ाओ, एंड देयर इज सो मच टू डू टुगेदर। थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग, खुदा हाफिज।